Hello students of 12th class of science stream. In previous lecture we studied about uh, properties of electric charge, in which very important part is of the uh, quantization of electric charge. Okay, according to which charge can be calculated by the formula Q is equal to Ne, and where N is an integer and E is the fundamental electronic charge, whose value is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb is the unit of electric charge. Now we will discuss about types of electric charges with definitions. You know very well about the types of electric charges. Charges are of two types, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ओके, तो जैसा कि आपको बताया गया था, अभी हम डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव charge. You know very well, according to the electronic theory of electric charges, charges produced or developed on a body when we remove or add some electrons to that neutral body. Okay, तो एग्जाम्पल के लिए आप, जैसे कि मैंने सोडियम का Na का एग्जाम्पल लिया था, क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया था, तो आपको पता है कि यदि हम बात करें किसकी, सोडियम एटम की, तो सोडियम एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है और इसके पास जो इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 11. इस 11 एटॉमिक नंबर वाले एटम के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 11. और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, यदि इसका एटॉमिक वेट कितना है 23, तो इसके कितने होंगे 12. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास, विल बी 11. सो यू नो वेरी वेल द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन in magnitude, but both are positively charged. Proton is positively charged and electron is negatively charged. This will be equals to plus 11e and this is equal to minus 11e. That is overall charge on the sodium atom is 0. But if we remove one electron from this sodium atom, then suppose this is one electron, in that case number of protons will be 11, number of neutrons will be same 12, but number of electrons will be 10 because one electron is here. So then charge on protons will be plus 11e and charge on electron will be minus 10e. That is Q total. Q total will be equals to plus 11e and minus 10e. Overall charge will be equals to plus e. Okay, that means sodium atom is positively charged. तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी और ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा यदि आप उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, रिमूव कर दे. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इज द पॉजिटिव चार्ज is produced by removal of is produced by the removal of electrons from a neutral
body, neutral body, that is positive charge means deficiency of electrons. Okay, deficiency of electrons on a neutral body. Okay, if the number of removal of removed electrons from the neutral body is small, and then the charge produced on that body will be Q equals to plus N. Okay, and the charge on one electron is equal to the fundamental charge. Okay, और प्लस साइन आपको किसी को शो करेगा पॉजिटिव चार्ज को. ओके, so this is the expression for positive charge to calculate. Okay, is that clear? Now second thing is negative charge. Negative charge. Now negative charge means, देखिए क्या होगा, आपको क्लियर भी हो जाएगा कि जो निगेटिव चार्ज है उसमें आपका निगेटिव अमाउंट लार्ज होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन की नंबर्स किसकी कंपैरिजन में, प्रोटॉन की कंपैरिजन में लार्ज हो. देखिए क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं दोबारा से, किसका, क्लोरीन का. यहां दिखाई दे रहा है, ठीक. तो फोकस हियर. सपोज दिस इज एन atom of chlorine whose atomic number is 17. Okay, so the number of protons in chlorine is 17 and number of electrons is also 17. Charge on overall protons will be equals to plus 17e and charge on overall electrons is equal to minus के 17e. So Q total now is 0, that is overall atom is neutral. Okay, overall atom क्या आपका, ये आपका क्या है, न्यूट्रल. ओके, ये आपकी न्यूट्रल एटम कह दिया, न्यूट्रल बॉडी कह दीजिए. एंड सेकंड, नाउ वी ऐड one extra electron in this atom, then we get another thing whose which have protons 17 and the number of electrons will be increased by 1 due to this electron will be equals to 18 electrons and the charge on protons, overall protons will be 17e, but charge on overall electrons will be equals to minus के 18e. That is Q total will be equals to plus 17
minus 18e, that is equal to minus k1e, which is denoted by one negative sign on the chlorine atom. This is the chlorine ion which is negatively charged. That means negative charge is nothing but is the excess amount of electrons on that neutral body. Okay, so we can define the negative charge in that thing. Negative charge is produced by giving or at by giving electrons to a neutral body that is negative charge is nothing but it's a excess amount of electrons on that neutral on that body. Okay, now again, if the number of if the number of given electrons to a neutral body is small n, then the negative charge चाचू 13 मिनट की होगी. कोई नहीं, that the negative charge on that body will become Q equals to number of excess electron is small n, and the charge on one electron is E, fundamental charge, and this is the overall effect is negative, so Q is equal to minus N. ठीक है, okay, and the value of E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, where coulomb is the unit of electric charge. These are the types of electric charge. ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए, हमें जनरली यदि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना पड़ता है. बट क्योंकि ओवरऑल एटम आपका न्यूट्रल होता है, इसलिए हम ओवरऑल इफेक्ट को कंसीडर करते हैं कि उसके पास कितनी एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितनी आपकी डिफिशियंसी है. ठीक है, ओके. तो नाउ टू क्लियर दिस टाइप्स ऑफ electric charges and to find out the value of electric charge on any body, we take some examples to clear these topics for you. Okay, now for
सपोज आप कंसीडर कर लीजिए इसमें एक एग्जांपल। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, कैन ए बॉडी हैज चार्ज 1.5 इलेक्ट्रॉन वेयर, देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, कैन ए बॉडी हैज चार्ज 1.5 इलेक्ट्रॉन, ओके, ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखिए एक ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है जो चार्ज है और उसके पास 1.5 ई के इक्वल चार्ज है, और ये आपसे क्वेश्चन करता है कि क्या ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर पॉसिबल है या नहीं। देखिए जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी तक आपका जो लेंथ है, मास है, उनका क्वांटाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बट अवेलेबल नहीं है, बट इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन अवेलेबल है, और उसकी जो मिनिमम अमाउंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के इक्वल होती है। दैट मीन्स इससे मिनिमम वैल्यू नेचर में चार्ज की अवेलेबल नहीं है, तो जो भी चार्ज नेचर में अवेलेबल होगा वो कहीं ना कहीं इस ई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। चूंकि ये इंटीजर मल्टीपल ना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, तो इसलिए ये चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे नो होगा, बिकॉज द फिजिकली एग्जिस्टिंग चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो आंसर आपका क्या होगा? नो। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, इफ ए टीनी पार्टिकल इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज डज इट्स मास इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए क्या कहा क्वेश्चन यहाँ पे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक क्या है, पार्टिकल है, और आपने इस पार्टिकल को कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया। देखिए ये अभी तक यहाँ पे क्या था, शुरू में न्यूट्रल था, इनिशियली आपका पार्टिकल न्यूट्रल है, आफ्टर सम टाइम आपने इसे जो चार्ज दिया, फाइनल कंडीशन में सम पॉजिटिव चार्ज आपने से ट्रांसफर किया। देखिए आपने थ्योरी क्लियर कर ली होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज मींस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज मींस एक्सिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो आपको इसमें क्या करना होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब सम इलेक्ट्रॉन्स को आपको रिमूव करना होगा। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो सम मास भी इसमें से क्या होगा, आपका रिमूव होगा। दैट मीन्स का मास आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मास डिक्रीज करेगा, तो मास डिक्रीज करने के साथ साथ जो इसके इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है इसके अराउंड, वो भी आपका थोड़ा सा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आप जब पॉजिटिव चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो उसका साइज और मास दोनों डिक्रीज होते हैं। सिमिलरली यदि आपका कोई ऑब्जेक्ट है और यदि आपने से कुछ नेगेटिव चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज मीन्स उसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया, इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ मास होता है, तो उसके कारण उस पार्टिकल के मास में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और कुछ साइज में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, a conductor carries a charge -9.6 into 10 to the power -17 coulomb. How many free electrons